माननीय अध्यक्ष जी, मैंने थोड़ा छोटा बिल है, छोटी चर्चा होगी। हाँ, छोटी चर्चा कर लो आप छोटा मुझे उत्तर दे दो। एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे विषय में जो हमारे माननीय चाहे हमारे दादा हों या बाकी मित्र हों, वकीलों की बात की गई, लेकिन आज तो इतना विद्वतापूर्वक मैंने टिप्पणी देखी। मैं अभिनंदन करूंगा सारे मेंबर्स का। I want to commend the knowledge, understanding of arbitration proceeding of all the non-lawyer members also, and I am placing on record my deep appreciation the way all of you have conducted. Therefore, just to, for the paucity of time, I am not going to details of all the names. सर, मैं कुछ जनरल बातें पहले कहना चाहता हूँ। काफी चर्चा की गई। I will speak mixed, Hindi and English both. That what are you doing? India's ranking in the ease of doing business, etc., etc. दो तीन बात मैं इस हाउस को बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को ईमानदारी से आर्बिट्रेशन का एक हब बनाना चाहती है और हम बनाएंगे। We will make India a big hub of international and domestic arbitration. We don't say for the, and all these exercises are basically designed for that, कि अगर इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां महसूस हुई तो हमको लगा कि नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। पर जस्ट टू रिकॉल वैल्यू सर, आते ही इस समय विभाग को मैं देख रहा था। वी सेट अप ए बिग कमिटी हेडेड बाय जस्टिस श्री कृष्णा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, मेनी अदर जजेस वेयर देयर रिटायर्ड, टू गिव रिकमेंडेशंस। उन्होंने क्या रिकमेंड किया? जो मिस्टर गल्ला सेड कि इंडिया नीड्स टू हैव बिग फिलिप फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। एंड आई वांट टू कन्वे टू दिस हाउस दैट आई हैव गॉट ऑल द लिस्ट. India today, sir, has got 36 institutional arbitration. I want India to have 500 institutional arbitration. I want India to have district level institutional arbitration. सर, जब ये मैं बिल बना रहा था तो मैंने विभाग को कहा कि जरा मुझे मैप पर दिखाओ कि कहां कहां इंस्टीट्यूशन है। तो टू माय अटर शॉक एंड सरप्राइज सर, होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट दिल्ली, ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट कैलकाटा, इंक्लूडिंग योर स्टेट एंड माई स्टेट, had no institutional arbitration. तो हमने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। Then we created a proper arbitration council of India which shall grade institution. अब बार बार लोग कह रहे हैं कि डिले होता है, तो एक अच्छे ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन का एक ये भी प्रिंसिपल होगा कि इनके यहां आर्बिट्रेशन केस का फैसला कितने दिन में होता है। And the institution which delivers it fast will have greater clientele and greater acceptability. An institution where decisions are taken on merit, not on corruption, integrity, will have greater acceptability. An institution where the arbitrators are more qualified, diverse. Mr. Galla, I wish to tell you, when I was making this bill, I said technology is a very extraordinary subject. Everything cannot be done by judges only. Can we have eminent people of technology to decide technological dispute? We must have that flexibility. Therefore, sir, the first thing which we did today, this removing Schedule 8, I must compliment the idea came from your suggestion, that we must give the flexibility to the Arbitration Council of India to lay down the norms of eligibility of all the arbitrators. And I want to make it very clear, sir. Foreign arbitrators are welcome in India, and this I am not saying today. If you see section 11, which we have drafted, I would like to read for a moment here. I thought I must clarify this confusion from the floor of this house itself, sir, that, sir, give me one time, sir. Yes, sir. This clearly said, sir, section 11, yes. Just a minute. Section 11. Appointment of arbitrators. A person of any nationality may be made an arbitrator. तो भारत क्या दुनिया में कहीं से भी आर्बिट्रेटर आ जाए, तो उसके लिए कोई इसमें बदलाव करना जरूरी है। We have a very open mind. India welcomes arbitrators of any nationality. As a law minister on the floor of the parliament, I am making this statement very clearly. If we want to make a hub of this, we will have to give autonomy to the institutions. And therefore, we are promoting the institutional arbitration in India, both for international arbitration and the domestic arbitration. Therefore, that is the scheme of that. And because certain issues came,
You can say that why you are bringing amendment. You have a problem, Mr. Premchandran. I always appreciate your great perseverance in opposing with such eloquence from 2014 when we have been interacting on so many laws. I salute that. But I would take a contrary view that if there is a hiccup in the implementation of law, an open government must do the correction so that the law works in a very, very flawless manner instead of allowing more and more confusion in the courts. I see it in that way, and that's what we have done, sir. सर, अब बहुत लोगों ने बात किया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्थान है, क्या नहीं है. तो सर, मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं. India's overall ranking in the ease of doing business in 2015 was 142. Now in 2020 it is 63. Just see in 5 years' time how much growth we have done in ease of doing business. In terms of enforcement of contract, Pinaki Babu, we were 186 in 2015. Now we are 163. More 20 ranks we have jumped. We need to jump more. तो अपना रास्ता ठीक है, मैं ये बड़ी अदब से आपको कहना चाहूंगा. तो उस पर दुनिया ये भी देखेगी कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत का रास्ता सही है और आगे जा रहा है, और हम जाएंगे. बड़े अदब से आपको हम कहना चाहेंगे. नाउ सर, वी हैव आल्सो चेंज्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर, उसमें पहले था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो खाली डैमेज लाओ, घर जाओ. हमने ये अमेंड किया कि नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइमरी प्री कंडीशन, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो दूसरी पार्टी से करा के उससे डैमेज वसूल करेंगे. तो वी हैव डन ए लॉट ऑफ स्टेप्स इन परस्यूट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वी शैल कंटिन्यू टू डू दैट. सर, बहुत सारी बातें की गई कि भारत में लोग क्यों आएंगे. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में बिजनेस करने का अच्छा अवसर है. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में टैलेंटेड लोग हैं. भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी कॉम्पिटेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ लॉ. और सर, मैं आज बड़े अदब से मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, और मैं चाहता हूं मेरी बात, और ये बात मैंने दुनिया के फोरम पर भी कहा है. इंडिया हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट जजेस ऑफ द वर्ल्ड. बट आई सी अ न्यू काइंड ऑफ monopoly happening in arbitration proceedings. Why? I'm staring at you. Why? बस ऐसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ संकेत नहीं बोलने दीजिए लॉ मिनिस्टर को. समझ गए? क्योंकि आज मुझसे बहुत सवाल पूछे गए. मैं चाहता हूं कि भारत के जजेस की भी दुनिया में उसी तरह से इज्जत मिले जिसके वो लायक हैं. ये नहीं होगा. एंड आई एम वेरी क्लियर, मिस्टर माय गुड फ्रेंड, any kind of neo-imperialism in the arbitration and adjudication is not acceptable to me. India is a rising power. Therefore, India's judges, India's lawyers should also be given due respect globally. सर, एक बात और आती है सर कि आपने किया क्यों है. सर, मैं ऑर्डिनेंस पे बाद में आऊंगा सर. सर, दुनिया का सर एक दस्तूर क्या बन रहा है, क्योंकि सर इस विषय पर मैंने दुनिया में देखा. मैं लंदन में गया, मैं बाकी जगहों में गया. दुनिया में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है सर, उसको लेकर बड़ी मशक्कत है. देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ अनईज, ग्लोबली स्पीकिंग, ऑन द मैनर इन विच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एडजुडिकेशन आर्बिट्रेशन हैज बीन कंडक्टेड. व्हाई? कहानी क्या है सर? आपने कहा कि हम आपके यहां 100 मिलियन रुपया इन्वेस्ट करेंगे. आपने इन्वेस्ट किया 10 मिलियन ना 15 मिलियन. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं. अब आपके अनुसार बात नहीं हुई इस देश में, आपने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर दिया. आई वांट 100 मिलियन डैमेजेस बिकॉज ऑफ माय टाइम स्पेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सर, क्षमा करिए, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, कई छोटे छोटे देश ने कहा हम तो टूट जाएंगे. जिस तरह से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारे छोटे देश के हितों के खिलाफ चल रही है. And when I started, I was myself amazed. Why is it that in bilateral investment treaty we don't see heavy punitive damages against big countries, whether in Europe and America? Why? Today, be it South Africa, be it Russia, all of them are having a great sense of unease कि we don't want to join this international architecture of bilateral investment treaty. और सभी भारत की ओर देखते हैं सर कि भारत क्या कर रहा है.
तो भारत का जो पूरा आर्किटेक्चर हमने कहा है कि दुनिया में हमें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से विदेश के लोगों को यहां लाना चाहते हैं, विदेशी आर्बिट्रेटर भी आए, विदेशी कंपनियां भी आए, उनको हम पूरी सहूलियत देंगे। वी विल गिव देम ऑल द फैसिलिटी टू हैव ए कंप्लीट गुड फ्रेंडली आर्बिट्रेशन रिजीम फॉर क्विक एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट। और सर मैं इसको देखता हूं, सर मैं आऊंगा क्योंकि कई सवाल किए इसलिए मुझे इसको थोड़ा व्यापकता में बताना पड़ा। मैंने इसलिए कहा कि भारत में एक बार ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस अपने आप डेवलप करेंगे कि एक सिंगापुर ही नहीं, हमारी कोशिश है कि भारत में कई सिंगापुर बने और ऐसे इंस्टीट्यूशन आज बॉम्बे में है, बाकी जगह हैं, दे कैन डेवलप और हमको उस पर काम करना चाहिए। अब सर बात आती है कि हम लाए क्यों। सर मैंने पहले भी कहा था कि सेक्शन 34 में एक बात का प्रावधान है कि अगर करप्शन और फ्रॉड से कोई एग्रीमेंट है तो पब्लिक पॉलिसी के दायरे में आएगा और उसके बिना पर भी आर्बिट्रेशन को आप एग्जामिन कर सकते हैं कि सेटिस्फाइड किया जाए। और सर एक बात जो नहीं देखी जाती है वो बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि लॉ में हम लोगों ने इसी सदन ने पारित किया है सर, और बहुत ही सुंदर शब्द है। मैं सर देखिए सर, आप मेरिट पर नहीं देखेंगे तो क्विक होना चाहिए, लेकिन सर उसमें एक बात और कही है, द लॉ द अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ओनली इफ इट वॉज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन और इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मोरालिटी और जस्टिस। तो नैतिकता और न्याय की बड़ी प्रारंभिक मान्यताओं से भी अगर वो निर्णय मेल नहीं खाता है तो यह भी विचार हो सकता है। अब सर मैं अपने से, मुझसे सवाल बहुत पूछे गए सर, सर मैं अपने से एक सवाल पूछता हूं। एक अवार्ड हो गया सर, एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट और अवार्ड होने के बाद ऐसा पाया गया कि सर इसमें तो भारी फ्रॉड हुआ है, इसमें तो अधिकारियों ने घूस लिया है और इसमें ठेकेदार ने घूस दिया है, क्या किया जाए सर? कहीं सीबीआई की इंक्वायरी की बात चल रही है, कहीं एफआईआर हो रहा है, तो चूंकि अवार्ड हो गया इसलिए ये स्टे नहीं होना चाहिए। कानून को इतना निरी नहीं होना चाहिए। यस दे हैव अ पॉइंट कि व्हेन इट इज ऑलरेडी देयर इन सेक्शन 34 व्हाई यू टू मेक इट, बिकॉज वी हैड सेड दैट देयर बी नो ऑटोमेटिक स्टे। Therefore, from that automatic stay, we are giving this window if the court is prima facie satisfied. और सर आपका इतना लंबा अनुभव है सर, प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन का एक आधार होता है। क्या एफआईआर फाइल करने से ही कॉग्निजेंस होता है? क्या नहीं होता है ना। इंक्वायरी होती है, पुलिस रिपोर्ट देती है, मजिस्ट्रेट अप्लाई करता है तो कहता है कॉग्निजेंस, बिकॉज प्राइमा फेसी है। तो सिर्फ आरोप लगाने से स्टे नहीं होगा, वकील साहब को और मोकिलान को प्राइमा फेशी एविडेंस पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये 10 कारण हैं जिसके कारण फ्रॉड हुआ है, तब कोर्ट मान सकता है। और सर दूसरी बात कही गई कि यू विल मोर प्रमोट लिटिगेशन। सर ये क्या तर्क है? अगर स्टे में किसी को शिकायत है ऊपर जाके सेटिस्फाइड करा देगा, और स्टे खाली फाइनल 34 के फैसले तक है। द स्टे इज नॉट अनलिमिटेड। द डे द डिसीजन ऑफ 34 इज डिसाइडेड, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड, स्टे गोज। लेकिन सर हमें यह बताएं कि अगर फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे ले लिए गए और किसी प्रदेश को या किसी देश को फॉरेन ट्राइब्यूनल में कह रहा है कि 10,000 करोड़ दो, 5,000 करोड़ दो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सुप्रिया जी, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद द इश्यू ऑफ रिट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ अदर अवार्ड विच यू हैव इन माइंड। नो, इंडिया रेस्पेक्ट्स the authenticity and sanctity of awards which have been there. This particular law operates in the limited field of fraud and corruption through which it has been obtained. Retrospectivity is a different ball game altogether. I thought I must clarify that. तो सर हमें ये बताया जाए सर कि जस्ट मैं आपको सर ये लोग मुझे सर मुझे आपको मालूम है कई चीज़ें गवर्नेंस की होती हैं तो हर चीज़ को यहाँ बोलना उचित नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सदन को बड़ी विनम्रता से एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर भारत सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का अवार्ड पारित कर दिया गया
और कोई फॉरेन इन्वेस्टर उसको बाहर में इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये पैसे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, हमारे आपके नहीं हैं, गरीबों के पैसे हैं। और भारत सरकार को ऐसे भ्रष्ट, फ्रॉड से प्रभावित एग्रीमेंट पर बने हुए अवार्ड को टैक्स पेयर के पैसे लुटाया जाए क्या? नहीं। उसका एक बार एग्जामिनेशन 34 में हो जाने दीजिए, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको हम स्टे करेंगे। मिस्टर पिनाकी मिश्रा, I don't know whether you are more eminent or others are more eminent. I am not as eminent as you are as a lawyer. I acknowledge very clearly. Now I am asking a simple question to you from your professional experience. Is it not a fact that the winner of an award keeps on running from court to court to get the award enforced? सर, कभी बहस होगी तो एक बार मैं बताऊंगा इस हाउस में कि दुनिया में कितनी जगह आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स करने की क्या क्या कार्रवाई चल रही है, और सब ईमानदारी से चल रही है। सर, ये हम नहीं कह सकते। भारत ईमानदार प्रक्रिया का स्वागत करता है, करता रहेगा। भारत ईमानदारी से प्रोक्योर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का सम्मान करेगा और निश्चित करेगा। इंडिया वुड लाइक इंडिया टू बिकम ए गुड हब ऑफ आर्बिट्रेशन, व्हाई नॉट? एंड इफ दैट इन्वॉल्व, एंड सर ये क्विक कंक्लूजन ऑफ द इंटायर प्रोसीडिंग, दैट्स वेरी गुड सर। तो सर, इसलिए मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब कुछ ने पूछा आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे? मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आई विश टू गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड इवन द न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर विच वी आर सेटिंग अप इन दिल्ली, फॉर विच द लॉ हैज बीन पास्ड, मस्ट हैव गुड ऑटोनॉमी in selection of arbitrators, in overseeing quick disposal of arbitration disputes, etc. Quality of arbitrators. So whether the New Delhi Center or Arbitration Council of India. And I am again saying, when the entire fast tracking of good institutional arbitration will be done, one institution which is delivering time-bound award, the quality of arbitrators is good, they are men of integrity, we will see a different professionalism rising in the country. And yes, Mr. Galla, you are right. To help that happen, we had to delete the Schedule 8, because Schedule 8 was putting some curb for everything we had to come to the Parliament. Now that power has gone to the Arbitration Council of India. They will decide. If they feel, for instance, for IT professionals, we need more clause, go ahead. So we have delegated that power. It is not excessive delegation. It is a rational delegation for speedy delivery of arbitration proceeding in the country. Let us see the world beyond Vodafone. There is a big world beyond Vodafone, huh? Isn't it? Yes. Now, sir, I come to the issue of why this ordinance? Why not the ordinance? Should we barter government of India's money? Should we barter taxpayers' money? When there is a collusive attempt to seek benefit of an award tainted with corruption? The answer is no, emphatic no. And therefore, there were compelling circumstances whereon which the cabinet passed the resolution and the president agreed to it. And now, obviously, the uncertainty of Corona, when will Parliament meet, all this was there. Therefore, sir, it was not a case of abuse of power. I would say, in the instant case, it was a complete appropriate exercise of compelling some circumstances power for invoking 123 proceedings, sir. सर, बहुत से मेंबर्स ने सर कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे। बहुत अच्छा कहा हमारे गोपाल शेट्टी जी ने। अपील कर आप दादा आजकल आज देखिए, देयर ही सिटिंग। नहीं, वो तो उन्होंने पहला भाषण दिया था, बहुत अच्छा भाषण दिया था, जो हमारे द फर्स्ट स्पीकर थे। सर, आज मैं कहूंगा सर, आज मैंने बहुत बड़े हम अपने एमपीज के नई क्षमता को देखा। मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। एंड आई वुड लाइक मोर डिस्कशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑन बिल्स लाइक दिस, सो दैट द हिडन विजडम ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स मोर पेटेंट। सर, गोपाल जी ने जो बात कही, अच्छी बात कही। हम लोग अपील करें कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए। अब उस अपील में कितना दम होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक अपील तो कानून मंत्री कर ही सकता है कि आजकल देश में पीआईएल फाइल करने की होड़ लगी हुई है ना। सुबह अखबार देखा, अब किसी को पानी नहीं मिला कि कहीं कोई धरना है तो पीआईएल फाइल होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होती है, हाई कोर्ट में भी फाइल होती है।
Today I want to take the freedom of this house to the appeal to the judiciary that please be a little more objective and I would say take into account your own decision as to on what circumstances PIL can be filed. Sir, I have been a great supporter of PIL. Some of my friends from Bihar know some of the tectonic shift-changing political cases I have argued in Bihar, sir. The fodder scam, the bitumen scam, the entire PIL was argued by me. I was also a lawyer of Ram Lalla, a lawyer of Advani ji. I have no problem. But today, a different thing. Yes, sir. And you never engage me. That is my problem with you. Now, sir, the point is, सुबह अखबार देखा, हेडिंग हुई, पिटीशन तैयार है, PIL फाइल हो गई. मैं किसी के PIL फाइल करने पर कोई मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं न्यायालयों से बहुत विनम्रता से अपील करूंगा कि जो जेन्युइन PIL हैं, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, इन्वायरमेंटल के इशू हैं, रैंक करप्शन के इशू हैं, जरूर करिए, लेकिन थोड़ा सा इससे कितना लोड बढ़ता है ये समझने की जरूरत है. और माननीय स्पीकर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं. आज आपके उपस्थिति में मैं एक बात अवश्य करूंगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की सभी कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, हम सम्मान करते हैं. एक बेसिक स्ट्रक्चर और है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है. और उसका मतलब ये होता है कि गवर्नेंस शुड बी लेफ्ट टू दोज elected by the people of India to govern and accountable to this house, and law making must be left to those elected by the people of India to make laws and accountable to this house. That is the norm of governance. तो अगर हम ये समझ के चलें सर, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, हमसे असहमत कभी नहीं होते हैं. तो सर, I think I have practically addressed all the concerns of all my friends who have come. Yes, someone talked about Supriya ji infrastructure project. We are very keen that infrastructure projects should be cleared, the payment should be cleared at the government level, the direction that fast tracking of payment should be done. But yes, with a caveat, India should not become the center of procuring award based through corrupt and fraud means. Under the government of Narendra Modi ji, we are acting in an honest, transparent manner, and that we will go. We are determined to make India a hub of arbitration. But remember one thing, India will become a hub of arbitration only and only when the world also trusts the integrity of the system there, the governance and the award delivery. That is what this bill supports, sir. तो मैं इसके कारण सर बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि सबों का अभिनंदन है. मेरे उनके आशंकाओं को मैंने बहुत स्पष्ट किया है, तो इस बिल को सर्वानुमति से पास करेंगे सर, बड़ी कृपा हो. बहुत बहुत धन्यवाद सर.